Mark chapter 7, verse. After he called the people to him again, he began saying to them, hear and understand what I'm saying. There is nothing outside a man which by going into him can defile him, but the things which come out of the heart of a man are what defile and dishonor him. तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है, वे ही उसे अशुद्ध करती है। There is nothing outside a man which by going into him can defile him, but the things which come out of a man are what defiles and dishonors him. Then we go to verse 18, and he said to them, are you so foolish and lacking in understanding? Do you not understand that whatever goes into a man from outside cannot defile and dishonor him? जो कुछ मनुष्य के अंदर जाता है ना, ऊपर देखेंगे, जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ मनुष्य के अंदर जाता है, वो यहाँ से घूमकर पेट में डाइजेशन होकर फिर बाहर निकल जाता है. First, let's read 19. Since it does not enter his heart, but his stomach, and it is eliminated. 20. This, and he said, whatever comes from the heart of a man, that is what defiles and dishonors him. Whatever comes from the heart of a man, that is what defiles and dishonors him. 21. For within, out of the heart of man, comes and malevolent thoughts and schemes, acts of sexual immorality, thefts, murders, adulteries, acts of greed and covetousness, wickedness, deceit, unrestrained conduct, envy and jealousy, slander and profanity, arrogance and self-righteousness, and foolishness. All these evil things come from within and defile and dishonor the man. हर एक चीज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 21 में और 22 में, क्या हम पढ़ सकते हैं? 21 और 22 जोर से पढ़ेंगे. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। Today we are going to talk about the heart of a man, and we are going to talk about a burden. We are going to talk about burden, heart of a man and burden. एक मनुष्य का जो दिल है, हृदय है, और क्या? बोझ. All these evil things come from within and defile and dishonor the man. ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं, और दो बातें हैं जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। क्या वो है? वो दो बातें क्या हैं? जो दिल से निकलता है, what comes out of the heart does two things. It defiles you and me, and second, it dishonors you and me. क्या करती है? आपको दूषित करता है। जो दिल से निकलता है वो आपको दूषित करता है, और दूसरी बात क्या? वो आपको अनादर करता है। क्या अनादर करता है? अगले बार अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं दूषित क्यों महसूस करती हूँ, मैं खुद को अनादर क्यों महसूस करती हूँ, अब सब you know what I'm saying? Next time when you think about this, when you come across a feeling like this, when you are feeling dishonored, when you are feeling defiled, don't blame somebody else for it. What does the Bible say? When you are feeling defiled, when you are feeling dishonored, जब आपको ऐसा महसूस होता है तो किसी और के ऊपर उंगली नहीं उठानी। You are feeling defiled and dishonored not because somebody is dishonoring you, not because somebody is defiling you, but it is because your heart, आपके दिल के अंदर जो चीजें हैं, वचन कहता है, वो आपको दूषित और आपको अनादर महसूस कराता है। हालेलुया। क्योंकि पता है क्यों? Do you know why? Because the heart is extremely wicked.
मनुष्य का जो हृदय है बहुत ही क्या है, दूषित है। जरमाया का 17 का 9 पढ़ेंगे, जरमाया का 17 का 9 पढ़ेंगे, जरमाया का 17 का 9 इनमें पढ़ेंगे प्लीज। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता। मन मतलब क्या, दिल। दिल मन का और दिल का कनेक्शन होता है, क्या होता है वो, सबसे धोखा देने वाला होता है। प्लीज कॉन्फिडेंटली पढ़िए, जो भी आप पढ़ते हो ऐसे मत पढ़िए प्लीज। आप स्कूल के बच्चों को नहीं सिखा रहे हो, मन कॉन्फिडेंटली पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। बोले दिल और मन एक ही है। दिल क्या है, सबसे धोखा देने वाला होता है। उसमें से असाध्य उसमें से असाध्य रोग लगा है। रोगी है मन जो है, दिल जो है वो क्या है, रोगी है। उसका भेद कौन समझ Extremely sick. The Bible says in Jeremiah 17 verse 19, the heart is deceitful above all things and is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? कौन जान सकता है आपके दिल के बातों को सिवाय परमेश्वर के, apart from God. I the Lord search and examine the mind and test the heart. मैं जो हूँ, मैं तेरे दिल को टेस्ट करता हूँ, to give to each and every man according to his ways, according to the results of his deeds. पढ़ेंगे 10 का पढ़ेंगे, क्या लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय की जांचता हूँ। मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय की जांचता हूँ। हृदय को कौन जानता है, यहोवा जानता है आपके दिल के हृदय में क्या बसा हुआ है, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। आपके कामों का जो फल है आपके चाल चलन के अनुसार होगा। परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है। कौन, मनुष्य जांचे ना जांचे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर जो है, जिंदा परमेश्वर जो है, जिसकी बात आज कर रहे हैं, जो हमारे बीच में है, जो दिखता नहीं है, जो आत्मा है, वो आपके दिल को जांचता है और आपके चाल के अनुसार आपको फल देगा। सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने से नहीं, आपके चाल से आपको फल देगा। I would like you to turn to Psalms 34, Psalm 34 and verse 12. 11, 12. I'm going to read it in English first. Come you children, listen to me. I will teach you to fear the Lord with awe-inspired reverence and worship Him with obedience. Psalm 34, verse 11. And then we go to 12. Who is the man who desires life and loves many days, that he may see good? कौन है वो मनुष्य जो बहुत से दिन जीना चाहता है, और सिर्फ जीना नहीं परंतु अच्छे दिन देखना चाहता है? अपने हाथ उठाए, कौन है आप में से ऐसा, कौन है जो बहुत सारे दिन जीना चाहते हैं और सिर्फ जीना नहीं अच्छे दिन देखना चाहते हैं? आप में से कौन है, कितने हैं जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं? यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है, एक मनुष्य नहीं कह रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू, व्हाट डज द बाइबल से? Who is the man? What's the question? Who is the man who desires life and loves many days that he may see good? 13, 13, क्या लिखा है 13 में? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. क्या लिखा है हिंदी में, लिखिए, पढ़िए 11, 13, 11, 13 पढ़िए, जल्द से पढ़िए, लोग रुके हैं आपके लिए। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं 12 पढ़ेंगे। 12 वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, मतलब लंबा, ताकि भलाई देखे। अपने जीवनों में अगर आपने भलाई नहीं देखा, if you have not seen good things that have come to pass yet, today अपनी जीत को, sister, today if you receive this message, you will begin to see a transformation in your life. I pray in the name of Jesus and I prophesy over your life. If you receive this word on a serious note, अगर आप गंभीरता से इस वचन को लोगे, तो जो यहाँ पर लिखा है ना, वो आपके जीवन में होगा। Amen. क्या आप तैयार है? Who is that person?
Who is the man who desires the love and love many days that he may see good? Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. पढ़िए 13. अपनी जीभ को बुराई से रोक रख अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर और कि अपने अपने हाथ अपने मुंह पे रखो. क्या करना है? मुंह की चौकसी कर चौकसी. कर कि Okay, आगे come on. उससे छल की बात न निकले. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. 15. बुर, 15 पढ़िए. बुराई ओके 15 पढ़िए. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है. Now listen to this carefully. The eyes of the Lord are towards the righteous. परमेश्वर की निगाहें हैं, परमेश्वर की जो निगाहें हैं वो धर्मी की ओर लगी हुई है. किसके? धर्मी. परमेश्वर की निगाहें हैं वो धर्मी की ओर लगी हुई है और उसके कान and the ears are open to their cry. और उसके कान कहाँ पर लगे हुए हैं? दुहाई की ओर लगे हुए हैं. किसके? धर्मी. बोले धर्मी. धर्मी. बोले righteous. righteous. How many of you are righteous over here? आप लोग में से कितने लोग यहाँ पर धर्मी हैं? धर्मी का मतलब क्या है पता है? Do you know what is the meaning of धर्मी? Righteous. विश्वास. Whoever receives the Lord as his Lord and Savior, जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु मानकर लेता है वो राइचियस बन जाता है. Amen. वो धर्मी बन जाता है. सिर्फ यीशु मसीह को, उसके अलावा कोई नहीं. वो धर्मी. तो आज कितने लोग यहाँ पर जो धर्मी है? अपने हाथ उठाएंगे. कितने लोग यहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? प्रभु और प्लीज डोंट लीव स्पेस. The eyes of the Lord are towards the righteous and his ears are open towards their cry. लेकिन 16 में क्या लिखा है? परमेश्वर के नजरें जो है वो धर्मी के ओर लगे हुए हैं और उसके कान धर्मी के ओर है. लेकिन 16 में क्या लिखा है? The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears. वापस फिर दोबारा जब धर्मी रोएगा तब परमेश्वर क्या करेगा? वो सुनता है. लेकिन जो उनका स्मरण पाप में चलते हैं और जो पाप में चलते हैं परमेश्वर के नजरे वो फेर देता है. क्या लिखा है यहाँ पर? यहोवा में क्या लिखा है? यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है. yes. ताकि उनका स्मरण पृथ्वी. विमुख मतलब ये देखो ये मुख है ये विमुख. समझ में आ रहा है? मुख मतलब देखना और विमुख मतलब न देखना. ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले. 17. When the righteous cry, the Lord hears and rescues them from all their distresses and troubles. जब एक धर्मी जन रोता है तो परमेश्वर उनको उनके हर एक मुसीबत, हर एक क्लेश, हर एक परेशानी से उसको छुड़ा देता है. Amen. एक नहीं, हर एक. पढ़िए 17. धर्मी दोहराई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है. सब विपत्तियों से छुड़ाता है. अगर आप धर्मी हो 1 Peter 3:10. The one who wants to enjoy life and see good days must keep his tongue free from evil and his lips from speaking guile. जो मनुष्य अच्छे दिन देखना चाहता है. पढ़िए come on fast. Come on quickly. 1 Peter 3:10. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है. जो कोई जीवन बोले मैं जीवन की इच्छा रखती हूँ. मैं जीवन की इच्छा रखती हूँ. हाँ. और अच्छे दिन देखना चाहता है. देखना चाहते हो कि नहीं? लेकिन मैं तो नहीं देख रहा हूँ कई लोगों के जीवन में अच्छे दिन. वह अपनी जीभ और अपने होठों को छल. जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे. He must turn away from wickedness and do what is right. He must search for peace and pursue it eagerly, not merely desiring it. 12. For the eyes of the Lord are looking upon the righteous. परमेश्वर की जो नजरें हैं, for the eyes of the Lord are looking favorably upon the righteous, and his ears are attentive to their prayers. His ears are attentive. उसके कान जो है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं. विनती की ओर लगे रहते हैं. और आगे उसके बाद परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है.
but the face of the Lord is against those who practice evil. Those who practice evil. Psalm 34 का 19 पढ़ेंगे. Many hardships and perplexing circumstances confront the righteous, but the Lord rescues them from them all. Many hardships and perplexing circumstances confront the righteous. धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है. How many of you said that you are righteous? आप लोगों में से कितने लोगों ने कहा कि आप धर्मी हो? इसका ये मतलब है अगर आप धर्मी हो तो कठिनाइयां और उलझन भरे हालात कठिनाइयां और उलझन भरे हालात आपको ढूंढ रहे हैं. भरे If हालात. you are a righteous person, then hardships and perplexing circumstances are coming to confront you. The Bible says in Jeremiah 17:9 that the heart is wicked. Have you seen a snail? आपने snail को देखा है? What would happen if you step on it? It will get crushed. अब अगर आप गलती से पैर उसके ऊपर रखोगे तो क्रश हो जाएगा, है ना? So that means weight crushes. जो वजन होता है उससे क्या होता है? कोई चीज कुचल जाती है, right? So God has given us a heart and a soul. हमको परमेश्वर ने ऐसा हृदय दिया. God has given us heart and He's given us the heart can bear weight as much as it can. The heart can bear only as much as it can. What happens? What will happen if your heart is not able to bear that weight? अगर कोई ऐसा weight है जो आपका दिल जो है वो संभाल नहीं पाए तो क्या होगा? That heart mass will get crushed, right? Just like the snail. It will get crushed, right? कुचल जाएगा ना? You might be going through a tough time, and you know the heart, human heart, can get crushed in so many different ways. I don't know if you agree with me, but that's the truth actually. You know, when you lose your loved ones, जब आप आपके नजदीक लोगों को खो देते हो, your heart is crushed, है ना? Many of you might have gone through, maybe in your childhood, you might have experienced molestation. बचपन में आपने शोषण सहा होगा, मैं नहीं जानता हूँ. जब आप वो बात को सोचते हो, you feel crushed, right? Many of you all say that some of them have not had they had a very, their upbringing has been very, horrific. And when you think about it, it crushes you. You know, there are many people, these are all crushing experiences. आपके जो बचपन में आपके साथ जो हुआ है, मैं नहीं जानता हूँ. But those things, when you think about it today, these are all crushing elements that crushes our heart. What is it that you can tell me? ऐसा क्या चीज है जो आप कह सकते हो that is the closest to heaven? What do we see with your physical eyes when you see clouds are the closest to heaven, the birds are the closest to heaven? जो पंछी है नजदीक है कि नहीं? कंफ्यूज क्यों लग रहे हो सिस्टर? Why are you confused? कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? सबसे नजदीक क्या नजर आता है स्वर्ग से? सबसे नजदीक आसमान. Sky is sky. What is closest? What is closest to the skies? Sister correctly said. Birds, clouds. Why? Because your heart is heavy. आपका जो दिल है बहुत ही कुचला हुआ है. God wants to tell you that your hearts are very heavy. कुचला हुआ है, दबा हुआ है. परमेश्वर चाहता है कि आपके जो दिल है वो लाइट होना चाहिए. आपका जो दिल है, your hearts, the Lord wants you to drop the weight that is on your heart, and God wants to do it for you so that your hearts will be light. I would want you to turn to Matthew 11, chapter 11, verse 28. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे. Hallelujah. हालेलुया. What does it say? Come to me, all you who are heavily laden, all who are heavily laden, and I shall give you rest. जो बोझ से दबे हुए लोग, आप मेरे पास आओ. आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं जब आपके बोझ, आपके दबे हुए बोझ को लेकर परमेश्वर के पास
प्रभु यीशु मसीह के पास आप में से कितने लोग जाते हैं? उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest. And then 30 में क्या लिखा है? For my yoke is easy and my burden is light. What does it say? My yoke is easy. My yoke is easy and my burden is light. लाइट Is your burden? Do you have the burden of the Lord, or do you have the burden or the yoke of a man? क्या आपका जो बोझ है वो क्या परमेश्वर का बोझ है, या आपका जो बोझ है वो मनुष्य का बोझ है? समझ में आ रहा है? मनुष्य का जो बोझ है वो आपको बंधन में लाएगी। मनुष्य का जो योग है, इंग्लिश में उसको योग कहते हैं, हिंदी में उसको जुआ कहते हैं। जुआ मतलब वो जुए नहीं, सर में खुजली करने वाले, वो जुआ नहीं। आपने गाय और बैल को उनके गले में जो लगा हुआ है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसे जुआ कहते हैं, उसको योग कहते हैं। कहां पर उसे इस्तेमाल किया जाता है? खेत में। खेत में खींचता है ना, हाँ। तो वो योग, उसे योग कहते हैं। तो परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपका जो दिल है वो कुचला हुआ है, आपकी जो परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थिति में आप हो, the situation and the circumstances you are in, that's heavy on you. आपके ऊपर वो वेट है, वो भार है, वो आपको कुचल रहा है। मैं नहीं जानता वो क्या है। वो बीमारी हो सकती है, वो एक ऐसी चीज हो सकती है जिससे आप गुजर रहे हो। आप आजादी पाना चाहते होंगे शायद से। परमेश्वर क्या कह रहा है? Come to me and I shall give you। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। दबे हुए जो लोग हैं, अगर आप है, कितने लोग यहाँ पर है जो बोझ से दबे हुए नहीं है? कोई हाथ उठा सकता है? कोई बोझ सकता है? मैं कोई बोझ से दबी हुई नहीं। मैं हूँ। Is there anyone here in this room can say that? I will reveal it to you। सब बोझ से आपको मैं दिखाऊंगा, और फिर आप खुद देखिए और फिर खुद पूछिए, ये सब है क्या मेरे अंदर? बोझ से दबे हुए जो लोग हैं मेरे पास आओ। लेकिन अगर आप आज तैयार हो जाते हो, if you are willing to, if you are saying I am ready, the Lord wants you to drop that weight first. Number one, drop that weight and then go to Him. Second is, if you are willing to go to the Lord, the second thing the Lord is expecting you to do is, आपका जो responsibility है वो ये है कि आप परमेश्वर का बोझ भी उठाएं। परमेश्वर का बोझ, बोले बोझ। बोझ। There are two different yokes. One is the yoke of a man and the other is the yoke of the Lord. जब परमेश्वर के पास आप जाओगे आपके दिल को लेकर, तो परमेश्वर अपना जुआ आपको देगा। God will give you His weight, but His weight, His burden is light. Hallelujah. Okay, you didn't get that. The only way to lighten your burden is to lift up your eyes to heaven. Is to lift up your heart to heaven. एक ही तरीका है कि आप आपके दिल के बोझ से आप हल्का की तरीका है। वो तरीका क्या है पता है? आप आपके नजरों को प्रभु की ओर नहीं, स्वर्ग की ओर उठाएंगे। स्वर्ग के नजदीक क्या है? What is the closest to heaven? Those things that are light are closest to heaven. Are you listening? That which is light is closer to heaven. Right? Am I correct? So if your heart is close to heaven, then your heart shall be light. Yeah? But how स्वर्ग की ओर a person who allows his heart to be light is a righteous person. जो मनुष्य अपने दिल के बोझ को परमेश्वर के पास लेकर जाता है, उस परमेश्वर के बोझ को लेता है, वो क्या पाता है? वो अपने हृदय को हल्का पाता है। और वो मनुष्य हल्का हो जाता है,
वो स्वर्ग के निकट होता है. He is the closest to heaven. But how do we do that? कैसे करें? अपने बोझ को हल्का कैसे करें? क्यों? 11:30. क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है. मेरा बोझ हल्का है. आपके पास कौन सा बोझ है? Are you yoked to human burden? Are you yoked to the Lord's burden? मेरा सवाल है. Are you yoked to a human burden? Are you yoked to the Lord's burden? You see, many of you think that you got to match up to other standards. जब हम किसी भाई को देखते हैं, किसी बहन को देखते हैं. Actually, I'm even talking to youngsters, but some youngsters have already gone fast asleep. हम देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो क्या होता है पता है? कई बार आपके साथ हुआ होगा ना? अब देखते हैं तो, ओ मैडम देखो ना कितने अच्छे से उसने कपड़े पहने हैं. ओ भाई साहब को देखो कितने अच्छे से, है ना? और हम खुद को देखते हैं, देखो उसको देखो. They come to be from a well-to-do family, you know. When we look at them, they must be coming to be from a well-to-do family. बहुत अच्छे मतलब घराने से होंगे. They can afford it. We can't afford it. कई बार हम लोग ने कंपेयर किया होगा ना दूसरों के साथ. वो परिवार को देखो कितना अच्छा परिवार है. हम लोग को देखो. Look at us. We have been in the Lord for so many years. हम खुद को मसीह करते हैं, कहते हैं. Here we call ourselves Christians. But look at their lives. The devil begins to whisper in your ears, and you look at them and you say, oh, "Look at their family. Look at all that they have. देखो उनके पास क्या कुछ है, और मेरे पास क्यों मेरे पास नहीं है? मैं भी तो मसीह हूँ. मैं तो यीशु मसीह में हूँ इतने सालों से. उस ब्रदर, वो बहन को देखो, भाई को देखो, हमेशा चंगाई में चलते हैं, है ना? कंपेयर करते हैं, हमेशा चंगाई में. They are always walking in great health. कंपेयर किया आपने कभी खुद को दूसरों से? Because I am a Christian. If I am a Christian, then why don't I have this or that? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? What are you trying to do? You're trying to match up to somebody else's standards. You're trying to match up to somebody else. आप खुद को उनके साथ कंपेयर जब करते हो किसी और के साथ, it's called a human yoke. That is a human burden. वो मनुष्य का जुआ है. You see, Jesus didn't die for us to gain all the materialistic things of this world, to gain fame, to gain riches and wealth and all those things. यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए मरा ताकि हम फेमस हो जाएं, ताकि हम बहुत धनवान हो जाएं. Jesus came to die for our sins. Period. यीशु मसीह सिर्फ हमारे पाप के लिए आया. वो हमें He came to restore our relationship, our broken relationship with the Father. हमारी जो परमेश्वर के साथ जो नाता है, जो दूरी है ना, वो कम करने के लिए यीशु मसीह आया. हमारे रिश्ता को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, जो टूट गया था, वो बनाने के लिए आया. हालेलुया. क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से दूर रहें और नरक में जाएं. God didn't want his children to go to hell and burn for eternity. He didn't want us to go to hell and experience. But ये बहुत जरूरी है ये जानना कि पिता जो है वो नहीं चाहता कि कोई आग की कुंड में चले अनंत काल के लिए. और जो जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो आग के कुंड में डाला. वो तो बात अलग है, वो टॉपिक नहीं है. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता, और ये कि परमेश्वर नहीं चाहता इसलिए उसने अपने बेटे को दिया. बट डू यू नो हु इज द क्रिएटर ऑफ विजडम? बुद्धि का जो रचने वाला कौन है? परमेश्वर. God is the creator of wisdom. He is the one who formed wisdom, right? So whom would you want to receive counsel from? आप किससे काउंसिल चाहोगे? मनुष्य से या परमेश्वर से? आपके माँ के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने आपको जाना है ना? God knew you, the Bible says, even before you were formed in your mother's womb.
And it is the same God who knows you and who knows your enemy, that is the devil, जो शैतान को भी जानता है और ये भी जानता है कि आने वाले दिनों में, in your future, what traps he has laid. जो भी traps हैं, जो भी traps को क्या कहते हैं, जाल को परमेश्वर जानता है. तो आपका जो विजडम है, जो इंफॉर्मेशन है, जो मार्गदर्शन है, वो आप मनुष्य से लोगे या परमेश्वर से? परमेश्वर. He is the God of all ages, right? बहुत बड़े, जब से उसने सृष्टि को बनाया है. But when we receive wisdom, instruction, and so many different things, whatever it is you need instruction for from man, अगर आप प्रभावित होते हैं मनुष्य के बातों को लेकर, जब आप प्रभावित हो जाते हो, when you are compelled to do something what somebody says and you do it because you are compelled to do it, then you are under the yoke and burden of man. जब आप वो करते हो जो मनुष्य आपसे कहता है करने के लिए क्योंकि आपको अच्छा लगा, आप परमेश्वर के पास नहीं जाते हो, आप मनुष्य का सुनते हो और करते हो और आप प्रभावित होते हो करते हो, इसका मतलब आप मनुष्य के जुए में बंधे हुए. You are causing yourself to be under the burden of man. मनुष्य का जुआ, the yoke of a man. So then what do you do? Because there are two different yokes. The yoke of a man will burden you and the yoke of God will make your heart light. It will lighten you. मनुष्य का जो जुआ है वो आपको बोझिल करेगा. मनुष्य का जुआ आपको बोझिल करेगा, लेकिन परमेश्वर का जुआ आपको हल्का लाइट करेगा. तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? परमेश्वर What का will you do? Lift your eyes स्वर्ग स्वर्ग heaven and lift your heart to heaven. समझ में आ रहा है? इतना समझ में, ये तीसरी बार बोल रहा हूं. Lift your heart to, but how will you lift your heart to heaven? आप कैसे आपके दिल को आसमान स्वर्ग की तरफ उठाओगे? कैसे? कैसे? यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ मेरे पास बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा. नंबर 1, कई बार हम जाते नहीं हैं सीधा परमेश्वर के पास. पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले हम लोगों के पास जाते हैं, है ना? पहले हम सीधा कहाँ जाते हैं? लॉयर के पास जाते हैं. पहले हम सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं. लेकिन परमेश्वर के पास, है ना? इसलिए क्या होता है, आपका जो बोझ है, मनुष्य का जो बोझ है, संसार का जो बोझ है, आपको दबाए रखता है. इट कीप्स यू burdened, perplexed and crushed all the time. But how do you set yourself free from it? आप उससे कैसे आजाद होगे? हमारा बोझ. दूसरी बात, परमेश्वर का जो बोझ है वो लो. परमेश्वर का जो क्या कहते हैं, योक, क्या कहते हैं, जुआ. जुआ क्या है? जुआ क्या है? वो लो. कैसे लोगे? इन 1 Peter 3 verse 11, एक पत्रस 3:10. The one who wants to enjoy life and see good days must keep his tongue free from evil. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों कैसे को. आप आपके जीभ से अच्छी बातें कर सकते हो? How is it even possible for you to be able to speak the language of heaven, to speak the language of God, to speak the language of love, to speak the language of faith, to speak the language of reliance upon God, your faith upon? How will you even do that? कैसे हो सकता है कि आप आपके जीभ को अच्छा कर सकें जब आपका दिल जो है वो सबसे क्या है, दूषित है? If your heart is extremely wicked, according to Jeremiah 17, how can you achieve speaking a language that God is intending you to speak? How can you achieve that? 12 में क्या लिखा है? What does 12 say? For the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are attentive to their prayer. क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं. परमेश्वर के कान विनती की ओर लगे हुए रहते हैं. किसके?
परमेश्वर के आंख नजरें जो है धर्मी के ओर लगी है रहती और उसके कान विनती की ओर। लगे रहते, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। So now I will ask you this question: if your heart is full of wickedness, then whatever you speak automatically is wicked. है ना? अगर आपका दिल ही कचरे से भरा हुआ हमेशा रहता है, तो आप जुबान से जो बोलते हो वो क्या अच्छा हो सकता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? दो बातें होती हैं. There are two things that comes out of you. What happens? Two things. It defiles you. और दूसरा क्या होता है? It dishonors you. आपको दूषित करता है और आपको अपमानित करता है. आपको आपका मम्मा पापा अपमानित नहीं करता, आपके आस पड़ोस के लोग अपमानित नहीं करते हैं, है ना? आपके दोस्त, आपके सहेली अपमानित नहीं करते हैं, आपको वो दूषित नहीं करते हैं. आपका दिल जो है वो आपको दूषित करता है. और अगर आपका दिल ही दूषित है, अगर आपका दिल ही पाप से भरा हुआ है, तो आपके जुबान से कभी भी कोई अच्छी बात निकल सकती है क्या? निकल सकती है क्या? नहीं निकल सकती. तो परमेश्वर किसकी ओर अपना नजर रखता है? धर्मी. धर्मी कौन है? Who is the one who is righteous? जो प्रभु धर्मी के ओर अपना और कान attentively, the Bible says in 1 Peter 3, what verse 12, he attentively hears your prayers, but he will not listen to you. अगर आप evil को practice करते हो, he will not listen to you. Many youngsters are addicted to pornography. Many youngsters are watching things that they shouldn't be watching. नहीं देखना चाहिए जो उनको देखना चाहिए. बहुत सारे युवा बच्चे जो हैं अश्लील चीजें देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर, इधर उधर, और फिर उनके अंदर इच्छाएं जागृत होती है कि मैं भी उसके जैसे बनूं, कि हम भी उसके जैसे बने. समझ रहे हो? तो ये जो बातें हैं, मैंने कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है. I want you to take, can you please turn with me to Mark 7 once again. Mark 7 verse 21, verse 22. I would like you to turn to that. If you have any of these things, अगर आपके अंदर इनमें से अगर एक भी बात है जो आपके दिल के अंदर है, अगर एक भी बात हो, कोई भी चीज हो आपके अंदर, तो यही वो बातें हैं जो आपको दूषित करती हैं और जो आपको अनादर करती हैं. क्या आपके दिल के अंदर वो बातें हैं? I want you to turn to 21 and 22. Please read 21 and 22. Read it aloud. From within of the heart comes base and malevolent thoughts and schemes, acts of sexual immorality, thefts, murders, adulteries. 22. Acts of greed and covetousness. Acts of greed and covetousness मतलब क्या? कि हम भी चाहते हैं वो जो दूसरों के पास है. गंदे सोच विचार, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की बुराई करना. क्या करना? इसकी बुराई, उसकी बुराई, सबकी बुराई करना. ये क्या आपके अंदर है? अनरेस्ट्रेन्ड कंडक्ट, मतलब खुद को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. तो आप नहीं करना चाहते हो वो भी करते हो. आपको पता है वो गलत है. सिगरेट, दारू, आपको पता है गलत है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो. आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है. एरोगेंस एंड सेल्फ एरोगेंस. ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैंने बाइबल ना 10 बार पढ़ा है, 100 बार पढ़ा है. बाइबल के बहुत सारे उनके पास वर्सेस होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं, बहुत सारा जानते हैं, लेकिन उसको स्पिरिचुअल एरोगेंस कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? कहते हैं हमारे पास हम बहुत कुछ जानते हैं, है ना, हमको बहुत कुछ पता है. परमेश्वर उसे स्पिरिचुअल एरोगेंस कहते हैं. क्या आपके अंदर वो बात है? सेल्फ राइचियसनेस एंड फुलिशनेस. No, anything to do with the love for money. Anything to do with the love for money. The Bible says that the love for money is the root of all evil. पैसे से जो प्रेम करते हैं, जो धनवान बनना चाहते हो पर में, और पैसे से के पास जो है उससे खुश नहीं है. पैसे से रिलेटेड चीजें क्या होती है? घर, जमीन, प्रॉपर्टीज. उनका दिल उसी के ऊपर लगा हुआ रहता है. और लोग जो खाते हैं कभी खुश नहीं होते. उनके पास कितना भी वो कमाते हैं वो खुश नहीं होते.
They are not happy, they are not satisfied with what they have. खाते हैं लेकिन खाकर भी तृप्त नहीं होते. They eat a lot, but they are not satisfied. They earn a lot, but they are not satisfied. They have a lot, but they are not satisfied. बोझ से दबे हुए लोग. All these things, ये सब बातें जो है ना, ये अंदर से आती है. ये आपको दूषित करता है और ये आपको क्या करता है? अनादर करती है. क्या आपके अंदर इनमें से कोई भी एक बात है? इनमें से कोई भी एक बात है? Is anybody suffering from an addiction? Addiction of, social media. Addiction for the things of the world. अगर आपके अंदर वो बातें हैं, तो आपके जो जुबान पर अच्छी बातें आ सकती है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल. That is why the Lord says, आप कितना भी डिटर्जेंट 10 लीटर भी पियो, आपका अंदर जो है ना साफ नहीं होने वाला. कितना भी डिटर्जेंट आप 10 लीटर आप जो क्या बोलते बर्तन घासने का, अगर आप अंदर से साफ करना चाहते हो, साफ नहीं होगा. और जब तक ये सब दुनिया की चीजों से आप बोझिल हो ना, as long as you are weighed down and burdened with the things of this world. Can we turn once again? For the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are attentive to their prayers, but the face of the Lord is against those who practice evil. क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है. ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे. We must be very careful not to speak the words that naturally flow out of our hearts. सुन रहे हो? We have to be very careful not to speak the words that naturally flow out of our hearts, because it is our hearts that the Bible says is extremely wicked. समझ रहे हो? हमको बहुत ही ध्यान रखना है. कोई भी बात हम जुबान से जो कहते हो, आप भी कहते हो, वो आपके दिल से यूं ही निकलनी नहीं चाहिए. अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, हालेलुया, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, क्यों नहीं, ऐसे ही लगा इसलिए आपने बोल दिया, लगा इसलिए आपने बोल दिया. क्योंकि आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है, वो आपको जांचना पड़ेगा. पहले बोलने से पहले आपको जांचना पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है कि आपका जो दिल है वो सबसे दूषित है, जैसे कि यिर्मयाह 17:9 में लिखा. इसलिए हमको ग्रम्बल नहीं करना चाहिए, है ना. जो हम ग्रम्बल करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं. यू माइट हैव अ कंप्लेन about your wife or your husband or your daughter or your son, and it may be genuine. It may be genuine. Desperately want people to change, है ना. हम बहुत ही मतलब तीव्र इच्छा रखते हैं कि हम दूसरे जो लोग हैं वो बदले. But we don't want God to deal with our heart. The Lord is saying today, I want to deal with your heart. Because just because we are Christians and you go to the church, it does not mean that your responsibility ends there. आप चर्च जाते हो, आप मसीह हो, आप आराधना स्तुति करते हो, चर्च में बैठते हो, गीत गाते हो, प्रार्थना करते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर खत्म नहीं होता. Your complaints in your heart against your spouse or your son or your daughter, it might be genuine. But how much of Christ is in you, that will change other person. यीशु मसीह आपके दिल में कितना भरा हुआ है, वो उस मनुष्य को बदलेगा. आपके दिल में यीशु मसीह कितना भरा है. परमेश्वर आपके दिल को बनाना चाहता है. And many times we don't realize that it is us that need to really change. हम कई बार इस बात को नहीं समझते हैं. सुन रहे ऊपर सुन रहे, देख लीजिए. हम ये नहीं समझते हैं कई बार, कि एक्चुअली हमें बदलना है. हम चाहते हैं सब बदल जाए,
देखिए हमारे अंदर इतना यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह, आप चर्च जाते हो, आराधना स्तुति करते हो, प्रार्थना करवाते हो, लेकिन आपके अंदर मसीह कितना है? परमेश्वर कह रहा है कि आप जो है ना, आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड वांट्स टू बिल्ड दिस टेम्पल। गॉड वांट्स टू बिल्ड योर टेम्पल, बट योर ऑल्टर्स आर ब्रोकन। आपके जो दिल है वो दुनिया की चीजों से भरी हुई है। You've got all these things inside of you. Mark 7 verse 21, 22. You've got these things inside of you. आपके अंदर क्या भरा हुआ है? दुष्टता भरा। कहां पे लिखा है? यिर्मयाह 17 के 9 में लिखा हुआ है ना? मरकुस के 7 के 21-22 में लिखा हुआ है। तो ये जो बातें हैं, दो चीज करती हैं। वो जो बातें हैं, those two things, they do two things to you. One is they defile you, and the other thing is they dishonor you. That is what dishonors you. It is not others. वो दूसरे लोग नहीं है जो आपको अनादर करते हैं, वो आप खुद हो। बोले मैं खुद हूँ। मैं खुद हूँ। बोलो यहाँ पर देखकर, मैं खुद हूँ, क्योंकि वचन कहता है मैं खुद हूँ। बोलो मैं खुद हूँ। मैं खुद हूँ। दूसरे लोग नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। मैं खुद हूँ जो खुद को अनादर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है। इसलिए आप बोझ से दबे हुए हो। परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर आप चाहते हो कि आपके दिल को अगर आप साफ करना चाहते हो, if you want to live a life where you feel that you have dropped off all that heavy weight, you don't want to feel crushed anymore, then you've got to surrender your heart to the Lord. आपके दिल को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। और दूसरी बात क्या करना है? परमेश्वर के जुए को लेना है, मनुष्य के जुए को लेना, ड्रॉप करना है। Amen? How much of God is in you? How much of Jesus in you? You know, you become an environment for others to desire Christ. बोले, I become an environment for others to desire Christ. मैं वो पर्यावरण बनता हूँ, बनती हूँ जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रति खींचती है। क्या आप उस टाइप का पर्यावरण हो? क्या है? क्या नहीं, क्योंकि आपकी बातें जो आपके मुंह से निकलती है वो परमेश्वर की बातें नहीं। This is not the language that you speak is not the language of God. It's not the language of the kingdom of God. क्या? It's not the language of the kingdom of God. It's not the language of love. It's not the language of trust and hope on the Lord. पता नहीं कब होगा। ये लैंग्वेज क्या है? परमेश्वर करेगा। एक परेशानी से आपको आजाद करेगा। लिखा है God's wisdom, God's heart and God's ways. 3 बातें। परमेश्वर की बुद्धि, हाथ उठाएं। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का दिल और परमेश्वर का तरीका। एक ही तरीका, one way. यीशु मसीह ने कहा, I am the truth, I am the way and I am the life. यूहन्ना 14:7। परमेश्वर की बुद्धि, God's wisdom, God's heart. Why God's heart? Why God's heart? क्यों परमेश्वर का, क्यों यीशु का जो हृदय है, क्यों यीशु मसीह का हृदय, क्यों यीशु मसीह का हृदय? यदि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्यों? हाँ, एक मिनट, अब यहाँ पर ध्यान लगाओ। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। एक मिनट, because I am humble and lowly. दीन, मैं नम्र और दीन। यीशु मसीह क्या है पता है? नम्र है और दीन है। बोले यीशु मसीह नम्र और दीन है। परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह का दिल है। What is the heart of the Lord? What's his condition? He is always humble and lowly. Come to me because I am humble and lowly. सबसे दीन और नम्र इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। कोई मनुष्य, no man on earth has a humble and a lowly spirit. तो आप
आपके दिल को कहां लेकर जाओगे? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, फॉर आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट एंड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स। हालेलुया। मैं आ रहा हूं, लास्ट पॉइंट पे आऊंगा तब आपको समझ में आएगा। 29, इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरा जुआ उठाना का मतलब क्या है? What is the meaning of taking the yoke of the Lord? Number 1, you drop your burdens first. आपका जो भी कोई भी परेशानी है, बीमारी हो या कोई भी हो, याद करें अभी आपके पास समय है, आपके पास कुछ समय आप ले लीजिए। कोई भी है पहुंच आपके ऊपर, कोई भी है पहुंच, सोचिए जरा। सिस्टर है, लिस्ट बनाइए, मन में अपना लिस्ट बनाइए, चाहिए तो घर पे जाके लिखिए। अगर वो आपका बोझ है तो किसके पास लेकर जाओगे? जो नम्र दिल का है या घमंडी दिल का है? नम्र दिल का कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोई नहीं। तो आप डायरेक्शन किससे लोगे? आप गाइडेंस किससे लोगे? प्रभु। काउंसिल किससे लोगे? प्रभु से। आप किसके पास जाते हो? आप किसका सुन के हाँ बोलते हो? सिस्टर मनीषा का है, यहाँ पर होनी चाहिए। किसका सुन के वहां पर गई? बोझ कहां से आ गया? उसको बोलते हैं मनुष्य का बोझ। समझ में आ रहा आप लोगों को? इसकी वजह से परमेश्वर का नजर हट जाता है। क्या लिखा है? धर्मी के ऊपर अपना नजर परमेश्वर और काम लगाए। मतलब आप जब पुकारोगे ना, जब आप प्रार्थना करोगे ना, तब परमेश्वर सुनेगा। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो परमेश्वर विमुख करे, अपने मुंह को विमुख करे, नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा? आपका दिल बोझिल हुआ है संसार की चीजों को लेकर। फटाक से किसने बोल दिया, वो कर दिया आपने। आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ, अरे छुट्टी लो। दिल ने जो कहा वो आपने किया। इसलिए प्रार्थनाओं के ऊपर प्रार्थनाओं के ऊपर प्रार्थना आप करते जा रहे हो, लेकिन क्या परमेश्वर सुन भी रहा है? क्या परमेश्वर सुन भी रहा है? Is the Lord even listening to you? You got to ask this question. अगर आपको लगता है, अगर आपको जानना है क्या परमेश्वर मुझे सुन भी रहा है, तो आप क्या खोलेंगे? कौन सा वचन खोलेंगे? मरकुस 7 का 21-22 पढ़िए, वापस खोलिए। अब उसको पढ़ के पूछिए खुद से, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी बात है? Mark 7 verse 21 and 22। क्योंकि ये जो बातें हैं ना, आप यही भाषा बोलोगे। You will speak this language. If these are the things in your heart, you will speak that language every single day. You speak that language, the Lord will turn away from you. Every single day you speak that language, because what comes out of the heart is what defines you, and that's what happens. That is how you often practice sin. That is called practicing sin. जो आपके दिल के अंदर बातें हैं, वो जब जुबान से निकलती है, तो वो कहते हैं, परमेश्वर उसको कहता है पाप में चलना, प्रतिदिन पाप में चलना। समझ रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? पढ़िए जरा, क्या है वो चीज? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन। मैंने तो चोरी नहीं किया, मैं तो हत्या नहीं करती, मैं तो कोई मनुष्य के साथ, मैं कोई आदमी के साथ या कोई औरत के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। आप कहते होंगे, आगे पढ़ो, क्या है फिर? लोभ, दुष्टता। लोभ होता है, पैसे का लोभ है, कमाना 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 कमाना, दुष्टता। फिर भी खुश नहीं। थोड़ा भी है क्या आपके अंदर? होगा शायद से, पूछिए खुद से। और दुष्टता क्या है दुष्टता? लोगों के बारे में गलत सोच है ना, गंदगी, और गलत करना चाहते हो आप। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे पढ़े। छल है क्या आपके अंदर? छल, मेरे अंदर छल है क्या? आगे। लुचपन क्या होता है? लुचपन
आगे क्रूदृष्टि क्रूदृष्टि क्रूरदृष्टि, पता नहीं, मैं तो हिंदी समझता नहीं ठीक से, इंग्लिश में क्या पढ़ लगता है? निंदा हाँ, ईगल आई, बुरी निंदा, बुरी नजर बुरी नजर, निंदा, निंदा किसी के बारे में निंदा करना हाँ, वो है। करते हैं क्या? मैं ऊपर ही ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिल की बात चल रही है। परमेश्वर दिल की बात कह रहा है, आपके दिल के अंदर है क्या? आप मान तो रहे हैं परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए, लेकिन आपके दिल में वो है क्या? चलो आपके पास शायद से ये सिस्टम पास नहीं है, आपके पास शायद से आपके पास नहीं है, आपके पास कोई ना कोई है यहाँ पर जिसके अंदर ये बात होगी। आगे अभिमान अभिमान, घमंड, गर्व, मैंने क्या कुछ दुनिया में मैंने बनाया है, मेरा खुद का है क्या? खुद से आपको खुद पूछना पड़ेगा। आगे मूर्खता क्या? और पागलपंती, मूर्खता, कुछ भी करना, कुछ भी समझना हो क्या? परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में? कभी परमेश्वर से पूछा आपने क्या मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कभी पूछा है? नहीं, मुझे लगता है करना चाहिए इसलिए मैंने किया, फिर खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया। कभी परमेश्वर के पास सीधा गए क्या? ये सब बातें, इनमें से अगर कोई एक भी बात है, इसलिए प्रभु चाहता है कि आपके अंदर मसीह आ जाए। प्रभु आपके दिल से, आपके दिल की, आपको दिल के को शेप करना चाहते हैं। God wants to shape your heart, man. Don't be concerned about others. Be concerned about your heart. Is your heart clean before the Lord? Because your language is never going to change. आपका भाषा जो है ना कभी बदलने वाला नहीं है। अगर आप ये जानकर नहीं लोगे क्या मुझ में ये बातें हैं या नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, बट आज आपको आपके दिल को चेक करना पड़ेगा। अब चाहते लोग बदल जाए, लेकिन क्या आप आपके हृदय को परमेश्वर को देना चाहते हो कि नहीं? इट इज यू हु वांट्स योर बर्डन टू बी लाइटेंड, सो यू गो टू द लॉर्ड एंड से लॉर्ड, यू लिफ्ट अप योर हार्ट्स टू हिम। हाउ डू यू डू दैट? कैसे करेंगे आप? एक पत्रस 3 का अब आखिरी वचन में आपसे शेयर कर रहा हूं। एक पत्रस 5 का 6 और 7। एक पत्रस 5 का 6 और 7। Stop complaining about every next person around you. It is not their fault. दूसरों के बारे में कहना सोचना बंद कर दीजिए। वो उनके वजह से आप दूषित नहीं हो, आपके दिल की वजह से आप दूषित हो। आपका अपमान, आपको, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और वो करोगे जो परमेश्वर कहता है, आप कभी अपमानित नहीं होगे। You will never be put to shame. If you hear what the Lord tells you and you do that without questioning, बिना सवाल जवाब किए अगर आप वो करोगे जो परमेश्वर ने आपको कहा है करने के लिए, तो आप कभी आपका निंदा नहीं होगा। हालेलुया। आप कभी दूषित महसूस नहीं, आप कभी खुद को सामने वालों से कम नहीं समझोगे। You will not have a low self-esteem. 6 and 7. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, इसलिए so that He may exalt you of honor at the appropriate time. But 7 is what I want you to pay attention to. 7, casting all your cares, all your worries, all your concerns, once and for all, on Him, for He cares about you with deepest affection and watches over you very, very carefully. पढ़िए साथ। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। बोले क्या? कौन सी चिंता है? सारी। बोले सारी किस पर? प्रभु पर। लेकिन आप जाते किसके पास? डॉक्टर जो नरम दिल का है, क्या उसके पास जाते हो? सबसे नरम दिल का कौन है? किसके पास जाते? सबसे कड़क दिल के उसके पास जा रहे हो, जिसके पास टोपी है, जिसके पास बंदूक है और जिसके पास लाठी है, उसके पास जा। कड़क दिल ऐसा है बोला तो हाँ सर बोलो कुछ गलत भी नहीं किया तो भी हथकड़ी पहना। ऐसे दिल, ऐसे लोगों के पास जाते हो। किसके पास जाना है? प्रभु के पास। जो ज्यादा ज्ञानवान होता है, या फिर कोई है
जो आपके परिवार में हो, जिसने बहुत एजुकेशन, उसका एकदम हाई लेवल एजुकेशन है, बोले बोले बोले, हाथ जोड़कर। आप शायद से हाथ नहीं जोड़ते होंगे, लेकिन आपका दिल जो है ना, आपका जो दिल है ना, इट इज वेरी डिसीविंग। द बाइबल आल्सो सेज इट इज डिसीविंग। क्या कहती है? डिसीविंग। हाँ, पढ़िए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। सारी चिंता, सारी चिंता, सारी चिंता, करके सारी चिंता आपको याद करें, आपकी सारी चिंता, सब सारी चिंताएं, सब सारी नहीं, चिंता, चिंताएं नहीं आपको याद आ, सारी चिंताएं, अपनी सारी चिंता, हाँ, सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। इंसान को आपकी ध्यान नहीं, आपका ध्यान नहीं। कोई मनुष्य आपके जीवन में है ना, और दूसरों को अलग, दूसरे लोग बदल जाए, वो आशा ही छोड़ दो। क्या? दूसरे लोग बदल जाने का, Be hopeless about this, that I want others to change. हम नहीं बदल। Be hopeless completely. दूसरों, God wants you to change, my friend. He wants you to become like Christ. You become like Christ, the world will change for you. Hallelujah. हालेलुया। आपके अंदर अगर मसीह आएगा ना, तो आपके पीछे लोग भाग भाग के आएंगे। आमीन। लेकिन आपके अंदर दुष्टता रहेगा ना, गंदगी रहेगा ना, परमेश्वर जानता है। God knows you, your heart. हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था? परमेश्वर के अलावा कोई आपके दिल को नहीं जानता। So you might have a hypocritic face, मतलब आपके शरीर के ऊपर चमक, आपका चेहरा जो है चमकता है, झलकता है, आप बहुत ही नम्र नजर आते हो, लेकिन आपका दिल आपने छुपा के रखा है। आपके दिल में जो आपने छुपाया रखा है ना, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हालेलुया, हालेलुया। आपके दिल को साफ करे मैडम। इसे प्रभु ने कहा, जुबान के ऊपर ध्यान रखो आप क्या कहते हो, जो दिल में है वो निकलेगा, और वही चीज आपको दूषित करेगा। अगर आपने दूसरे को भी बोला है नालायक, उस चीज ने आपको दूषित कर दिया। He is stupid और she is stupid बोल देना, आप खुद को दूषित कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा वाइफ ऐसा, अगर आपने सोच भी लिया ना, अगर आपने सोच भी लिया ना अपने बच्चों के बारे में, ये ऐसी है, वो ऐसी है, आप खुद को दूषित कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नया सीखने मिल रहा है, ध्यान लगा। इसलिए क्या कहा? He cares about you in amplified with deepest affection. The Lord cares about you with deepest, बहुत प्रेम करता है आपसे, उसके नजरें आपके ऊपर, and he watches over you very carefully. बहुत ध्यान से उसकी नजरें आपके ऊपर है, ध्यान से, ऊपरी चेहरे या बाहरी रूप नहीं, अंदर। अब आपको समझ में आया मनुष्य का जुआ क्या है? What is the burden of a man and what is God's burden? Do you understand this? मनुष्य का जुआ भारी रहता है और प्रभु का हल्का। हल्का। तो किसका जुआ लेना? प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का जुआ लेता है वही धर्मी है। बोले वही धर्मी है। वही धर्मी। चाहे तूफान हो या आंधी आए, अगर आप कहते हो कि मैं धर्मी हूँ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। हर एक तकलीफ जो है आप किसके पास लेकर जाओगे? जो नम्र दिल का है। ये व्यर्थ मेरे, और जब आपका दिल साफ हो जाएगा, when your heart is cleansed, सुनिए, आपका दिल जब साफ होगा, शुद्ध हो जाएगा, तो आपका भाषा कैसे होगा? नम्र। आपका भाषा कैसे होगा? नम्र और आसमानी होगा। आसमानी। हालेलुया। आमीन। आमीन। और तब जब आप प्रार्थना करोगे, I want you to, in light of what we learned today, I want you to read once again before we go into prayers, Psalm 34, verse 12. Very, very patiently, carefully, बहुत ही धीरे धीरे से समझ तोल कर पढ़िए और विश्वास करके पढ़िए। यह वचन आपके लिए है। Who is the man who desires life and loves many days that he may see good? पढ़िए मेरे साथ।
हिंदी में जोर से, सिर्फ जितना मैंने पढ़ा उतना ही पढ़ना है। 34 Psalm 34 वर्स 12। 12। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। भलाई देखे, आपको भलाई देखना है। इफ यू वांट टू सी गुड डेज, 30 अपनी जीभ को बुराई से evil and your lips from speaking रोक deceit। रख, अपने जीभ को बुराई से रोक रख। बट वो पॉसिबल नहीं है, जब तक गंदगी निकला ही नहीं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको साफ करना है पहले। हाँ। है ना? और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। अब 15 पढ़िए, अब 15 पढ़िए। जब आपका दिल साफ हो जाए और आप अच्छे से शुद्ध से बोलना शुरू करें, आसमानी बातें बोलना शुरू करें आपके जीवन में, खुद को लेकर, दूसरों के बारे में, तब क्या होगा? 15 यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती तब है। आप बोल सकते हो मैं धर्मी हूं। That's when you can say I'm righteous. It's God's righteousness that is working in you. और उसके कान भी उनकी दोहाई की और and his ears are attentive to your prayers. लगे रहते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप कॉल में मिलते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, वो भी नहीं बोलते हैं। एक दूसरे से पहले हम बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सवाल, अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है, चलिए स्टार्ट प्रार्थना। परमेश्वर सुन भी रहा है क्या? आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, प्रभु सुन भी रहा है। कल रात को आपने क्या किया आपको पता नहीं है, सिस्टर ने क्या किया पता नहीं, प्रार्थना करो, प्रभु सुन रहा है, हो जाएगा। क्या आप से दबे हुए हो? खुद से पूछिए, मन कर लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं प्रार्थना करेंगे इस तरीके से, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप दूसरों के लिए, सवाल पूछना चाहता हूं, दूसरों के लिए क्या आप कभी प्रार्थना करते हैं? इसके अलावा, ग्रुप कॉल के अलावा, अकेले करते हैं। रोज? यस, वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया। दूसरों के लिए क्या चाहते हैं? जो बदल जाए। और आप? हम भी खुद के लिए, खुद के लिए, हाँ, खुद के उद्धार के लिए। सच बताइए, उद्धार क्या होता है? उद्धार तो आपने पा लिया। हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई दिल से कर पाते हैं, वचन परमेश्वर के साथ समय बिता पाते हैं। कभी पूछा है प्रभु मेरे में कोई कमियां हैं तो हमें परमेश्वर निकाल दे? पूछा कभी? नहीं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हमारे अंदर सब कुछ सबसे। एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। ये वचन जानने से पहले मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान था। बच्चों को लेकर, जैक, जेरमी, फेथ, उनको लेकर मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैं ऐसा मनुष्य हूं, मैं ऐसा इंसान हूं, आई एम सच अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज वांट टू टॉक लॉजिक। लेकिन बच्चों में कोई लॉजिक रहता नहीं है ना। बच्चे कुछ भी, कभी ये बोलते कभी कुछ और बोल देते हैं, परेशान हो जाते हो। एक तो वचन के ऊपर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भाई साहब आप कुछ भी बोल देता है। कभी सर पे चढ़ जाता है, कभी बोलता है मुझे पॉटी जाना है, और मम्मा बोलते मैं लेकर जाता हूँ, बोलता नहीं पापा को ही लेकर जाना पड़ेगा। मैं परेशान हो जाता है ना। लेकिन ये वचन की बात मुझे पता चला, वो बच्चा है इसलिए वैसा कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ। वो बच्चा है इसलिए वो रो रहा है। वो क्यों रो रहा है जान के तो रो। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, ये रोता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम दूसरों के तकलीफों को जानकर नहीं लेते, हम चाहते हैं वो सामने वाला बदल जाए, लेकिन उसके जीवन में क्या तकलीफ चल रही है आपने कभी सोचा है? मैंने ये जानकर लिया तो मैंने बोला हे प्रभु, ये तो छोटा बच्चा है, ये तो ऐसे करते रहेगा, मैं तेरे आत्मा स्तुति करता रहूंगा। I will continue to worship you, praise you, no matter what they do, because they are children. You love them as I love them, as I mean, you love them more than I do. ये तेरे बच्चे हैं, तू इन्हें बनाएगा। क्या? ये तेरे बच्चे हैं, तू इन्हें बनाएगा। परमेश्वर मेरे दिल को साफ कर। क्या? मेरे दिल को साफ कर। मेरे को पेशेंस दे परमेश्वर। Give me self suffering, लॉन्ग सफरिंग।
Help me not get angry on them. चाहता हूं परमेश्वर मैं गुस्सा ना करूं उनके ऊपर, चाहे कुछ भी हो, मैं गुस्सा ना करूं, क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध है ना, the Bible says that the anger of man's anger does not produces wrath, does not produce godliness. परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करती गुस्सा, क्रोध। मनुष्य जो क्रोध है ना, परमेश्वर की धार्मिकता को उत्पन्न, बोले ना मेरे साथ, उत्पन्न नहीं करती, लेकिन गुस्सा आता है। आप बदल जाएंगे, आपकी बेटी बदल जाएगी, आप बदल जाए आपकी बेटी, आप बदल जाए आपकी बेटे बदल जाएंगे, बेटियां बदल जाएंगी। You change, God will change them. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आपको दूषित कोई और नहीं कर रहा है, आप खुद कर रहे हो। आज से पूछना नहीं, आज से बोलना नहीं मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कोई अच्छा एजुकेशन नहीं दिया इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा, समझ रहे? उसने ऐसा मेरे साथ ऐसे किया इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसने परेशान करके छोड़ा, उसने परेशान करके छोड़ा, ये पुलिस, वो डॉक्टर। प्रभु यीशु इस वचन के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए धन्यवाद। आज से मैं अपने दिल को I will check my heart. Help me, keep me, Lord, from speaking guile. Keep me from speaking things that I shouldn't speak. I come to you, Lord, and I lift my heart to heaven. मैं अपने दिल को उठाती हूँ। I lift my heart to heaven, God. I ask you to make me master. परमेश्वर मैं चाहता हूँ प्रभु तू मुझे बना यीशु, जैसा तू चाहता है मुझे बना। यह आपके दिल की इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु, तू मुझे चाहता है वैसा और मुझे बना। मैं विश्वास करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ, I believe कि जब तू मुझे तेरे जैसा बनाएगा यीशु, जब तू मुझे तेरे जैसा बनाएगा यीशु, मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ जाएगा, मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ जाएगा। धन्यवाद यीशु, तुझे धन्यवाद कहती हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। I thank you for this word, Lord. धन्यवाद। Let this word convict me. Help me to walk according to this word. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you.